بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، پہلے تو تھوڑی سی ہم ترکیب کر لیتے ہیں آسان انداز میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے آپ نے جو پڑھا ہے وہ ان عبارتوں میں موجود ہے یا نہیں، یا آپ کو ان کی شناخت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو پہلے تو تھوڑی سی ترکیب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد قاعدہ پڑھیں گے مضاف مضاف الیہ کے تحت۔ سب سے پہلے ہم غور کریں گے الخادمانی، اس سے بالکل چاروں لحاظ سے ملتا جلتا کوئی اس کے بعد ہے۔ الخادمان المبسوطانی، یہ مبسوطانی، مبسوطن خوش دل کو کہتے ہیں، تو المبسوطانی یہ بھی رفع میں ہے اور یہ بھی رفع میں ہے۔ زیر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کر دینا کہ یہ جر ہے، نہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر زیر جر والا ہو، نہیں، بلکہ مبسوطانی یہ آنی بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ کی علامت ہے اور رفع کی ہے۔ خادمان المبسوطانی، تو گویا چاروں لحاظ سے برابر ہے، یہ بھی رفع میں ہے، یہ بھی رفع میں ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور یہ تثنیہ ہے عدد کے لحاظ سے، یہ بھی تثنیہ ہے، اور وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہے، یہ بھی۔ تو گویا کہ یہ کیا ہوا؟ موصوف ہوا، شاباش، اور یہ کیا ہوا؟ صفت۔ تو یہ کیا بنا جی؟ مرکب توصیفی ہوا، اور پلس مبتدا آیا ہے، شاباش۔ حاضرانی، خبر پر غور کرتے ہیں، گویا حاضرانی تثنیہ ہے کہ نہیں ہے، اور جو مبتدا ہے مبتدا کے مطابق ہے گویا کہ خبر، چاروں لحاظ سے تو نہیں لیکن وسعت کے لحاظ سے یہ نکیرہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ کیا ہوئی؟ خبر ہوئی۔ تو مبتدا اور خبر مل کر کیا بنے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو عطف ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور ہما کیا ہے؟ ضمیر ہے، کیا ہے؟ ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے اور کون سی ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کون سی ہے؟ تثنیہ ہے، ضمیر ہے، اس میں ضمیر پلس مبتدا بھی ہے، کیا ہے؟ مجتہدانی کیا ہے؟ خبر ہے، کیا ہے؟ خبر ہے، چونکہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہوا۔ اب یہاں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ ایک ہی عبارت کے اندر دو مبتدا ہیں اور دو ہی خبریں ہیں، ٹھیک ہے؟ گویا واو نے ان کو الگ کر دیا، ٹھیک؟ یہ فی الحال ایک آسان سی ترکیب تھی، بہت آسان، بالکل سہل انداز میں تمہارے لیے، تاکہ جو تم نے پڑھا ہے اس کی شناخت ہے تمہیں یا نہیں، صرف اس کا جائزہ ہمیں آج لینا ہے، چونکہ جب جیسے جیسے تمہارے قواعد بڑھیں گے آگے آگے، پھر انشاءاللہ اصطلاحات بدلیں گی اور ترکیب کا انداز بھی بدلے گا۔ میں ایک اور عبارت لکھتا ہوں، اب اس میں غور کیجئے گا کیا چیز کیا ہے۔ حل الاسلام دین حق، کیا ہے؟ کیا اسلام دین حق ہے؟ تو حل کیا ہے؟ حرف استفہام ہے، کیا ہے؟ الاسلام کیا ہے؟ مبتدا ہے، کیا ہے؟ اور دین حق، یہ گویا کہ چاروں لحاظ سے دونوں برابر ہیں، تو اس اعتبار سے یہ مرکب توصیفی ہیں، کیا ہیں؟ مرکب توصیفی اور خبر ہے، تو مبتدا اور خبر مل کر کیا بنے؟ جملہ اسمیہ استفہامیہ، کیا
आ क्या है भाई बच्चों? हर्फ इस्तिफहाम है। क्या है? लईसा क्या है? हाँ, इसे फ़िअल नाक़िस भी कह देते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इसे हम जो है हर्फ नफी कहकर पुकार लेते हैं। अल फीलु क्या है? मुब्तदा है। क्या है? हयवानन ज़ख़ीमन, चारों लिहाज से बिल्कुल बराबर है। मौसूफ और ये सिफत, तो मुरक्कब तौसीफी क्या बना? और खबर क्या बना? तो मुब्तदा और खबर मिलकर क्या बने? जुमलाए इस्मिया इस्तिफहामिया, चूंकि आ शुरू में है ना हर्फ इस्तिफहाम। अब हम एक कायदा समझ लेते हैं। अगर कोई ऐसी इबारत आ जाए जो मुख्तलिफुल जिन्स हो, क्या हो? उसमें मुज़क्कर का भी जिक्र हो, मुअन्नस का भी जिक्र हो, तो खबर किसके तहत आएगी? मुज़क्कर के तहत आएगी। किसके तहत आएगी? हाँ, जैसे अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कुरान कहता है खुदा ने मर्दों को औरतों पर फजीलत बख्शी है। मैं एक मिसाल देता हूं। जब कहीं से चूल्हा नोत दावत आती है तो वो औरत के नाम आती है या मर्द के नाम आती है? कि दावत में तो मर्द भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगी, लेकिन दावत किसके नाम आती है? मर्द के नाम आती है। क्यों? क्योंकि उसको खुदा ने मकाम मर्तबा था किया है। बस ऐसी बच्चों समझ लो कि अब जो हम इबारत लिखेंगे उसमें मर्दों का भी जिक्र है, उस्ताद मर्दों का और उस्तानियों का भी जिक्र है, मगर खबर किसके तहत आई है? हाँ, मुज़क्कर के तहत आई है। देखें, ये इबारत लिखी है इन्नल मुअल्लिमीना वल मुअल्लिमाति मबसूतूना लाकिन मा हुम बिमुज्तहिदीना। हमने बताया था आपको कि अगर इबारत में जिक्र मुख्तलिफुल जिन्स हो, यानी मुज़क्कर का भी जिक्र हो और मुअन्नस का भी जिक्र हो, तो खबर किसके तहत आएगी? मुज़क्कर के। अब आप गौर फरमाइए, इन्नल मुअल्लिमीना, बेशक उस्ताद, वल मुअल्लिमाती और उस्तानियां, मबसूतूना खुशदिल हैं, जबकि खबर किसके तहत आई है? मुज़क्कर के तहत आई है। लाकिन मा हुम बिमुज्तहिदीना, लेकिन वो सब मेहनती नहीं हैं। तो यहाँ बिमुज्तहिदातिन तो नहीं आया, बिमुज्तहिदीना आया है। तो खबर किसके तहत आई है? मुज़क्कर के तहत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इबारत में जिक्र अगर मुख्तलिफुल जिन्स हो तो खबर किसके तहत आएगी? मुज़क्कर के तहत आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थोड़ी सी आज हमने तरकीब की है आपके जायजे के तौर पर कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आप समझते भी हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए। अब जैसे जैसे कवायद बढ़ेंगे इंशाअल्लाह इस्तिलाहात बदलेंगी, कवायद बदलेंगे और सवाल और जवाब भी बदलेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं मुरक्कब इजाफी को। किसको? मुरक्कब इजाफी को। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं पहले इसको समझ लो। मुरक्कब इजाफी उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दी जाती है। सीधी सी मिसाल लो, मौलाना का डस्टर, तो डस्टर किसका है? मौलाना का है। तो ये डस्टर क्या है? मुजाफ है और इसको निस्बत दी जा रही है मेरी तरफ, तो मैं कौन हूं? मुजाफ इलैहि। ये मुजाफ कहलाएगा, मैं मुजाफ इलैहि। अच्छा चलिए, शहर का मदरसा, मदरसा क्या है? मुजाफ है, इसको निस्बत दी जा रही है किसकी तरफ? शहर की तरफ, तो शहर क्या हुआ? मुजाफ इलैहि हुआ। अच्छा, गुलफाम का बेटा, तो बेटा किसका है? गुलफाम का है, तो बेटा कौन हुआ? मुजाफ है और जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है वो मुजाफ इलैहि यानी गुलफाम साहब मरहूम है। इसी तरह गांव का तालाब,
یا तालाब का गांव, गांव का तालाब। तो ये जो गांव है ये मुजाफ इलैहि है और तालाब कौन है, मुजाफ है। तो एक इस्म को दूसरे यानी किसी शय को किसी की तरफ निस्बत दी जाती है, जैसे मदरसे की मस्जिद या मस्जिद का मदरसा, मदरसे की मस्जिद। तो मस्जिद क्या है, मुजाफ है और मुजाफ इलैहि। हाँ अच्छा, अल्लाह की दुनिया, तो दुनिया क्या है और अल्लाह कौन है, मुजाफ इलैहि है। शाबाश, तो समझ में आ गया होगा कि मुजाफ किसे कहते हैं और मुजाफ इलैहि किसको कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जुमलाए इस्मिया जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो मुब्तदा क्या होगा, मारिफा, और खबर खबर नकीरा, मुब्तदा मारिफा खबर नकीरा। मुरक्कब तौसीफी के बारे में हमने क्या पढ़ा, पढ़ा कि मौसूफ और सिफत, मौसूफ और सिफत चारों लिहाज से बराबर होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब इजाफी को। किसको, मुरक्कब इजाफी में जो मुजाफ है ना तो उसके ऊपर कभी भी अलिफ लाम तारीफी आता है और ना तनवीन आती है मुजाफ पर। जैसे हमें कहना है लड़के की किताब, तो कैसे कहेंगे, देखो किताबुल वलदी। हमने बताया कि जो मुजाफ होगा उसके ऊपर ना तो अलिफ लाम तारीफी आता है और ना तनवीन आती है। अब यहां देखकर बताओ, इस पर अलिफ लाम तारीफी है क्या, अल किताबु है क्या है ये, किताबु या किताबुन है, किताबु। ना तो तनवीन आएगी और ना ना अलिफ लाम तारीफ है। तो किताबुल वलदी, और मुजाफ इलैहि हमेशा जर में होगा, मुजाफ इलैहि हमेशा, ये याद रखिएगा, हमेशा जर में होगा। तो इसके तर्जुमा होगा लड़के की किताब, लड़के की किताब, किताबुल वलदी, लड़के की किताब। अच्छा, हमें कहना है अल्लाह की किताब, क्या कहना है हमें, देखो किताबुल्लाही क्या है, अल्लाह की किताब। यहां देखो रसूलुल्लाही क्या है, अल्लाह के रसूल। अच्छा, निअमतुल्लाही, अल्लाह की निअमत, निअमतुल्लाही, अल्लाह की निअमत। तो आप देख रहे होंगे कि मुजाफ पर ना तो तनवीन है ना अलिफ लाम तारीफी है, लेकिन मुजाफ इलैहि सब जगह जर में है। तो याद रखिएगा कि मुरक्कब इजाफी के दो जुज हैं, मुजाफ, मुरक्कब इजाफी के दो जुज हैं, मुजाफ, मुजाफ इलैहि। मुजाफ ना तो उसके ऊपर कभी अलिफ लाम तारीफी आता है और ना तनवीन आती है, और मुजाफ इलैहि हमेशा जर में होता है। क्या में होता है, जर में होता है। अब सवाल ये उठता है कि जी क्या मुअर्रफ बिल लाम ही होता है, जवाब ये है कि नहीं, हमेशा मुअर्रफ बिल लाम नहीं होता मुजाफ इलैहि। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं, ये तो मैंने मिसालें दी आपको अलिफ लाम तारीफी के साथ कि मुजाफ इलैहि पर अलिफ लाम तारीफी होता है। अब दे दूं कि जिस पर मुजाफ इलैहि पर अलिफ लाम तारीफी नहीं होता, जैसे लबनु क्या है बच्चों, बकरी, गाय का दूध, गाय का दूध। अगर यू कहे लबनुल बकरी, लबनुल बकर, अब ये हो गया किसी गाय का दूध, नकीरा हो गया, ये क्या हो गया,
नकीरा, और ये मारिफा है। तो ये तमाम कवाइद हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए हैं। आज हमने पढ़ा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को और उसकी चंद मिसालें पढ़ी, और एक नक्शे के साथ हमने इसको समझा कि मुरक्कब तौसीफ़ी के बाद हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को पढ़ा। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी के असबाब चलेंगे मुसलसल कई रोज़, तो इसमें आपको मेहनत करनी है और जो अल्फाज व मानी आपको दिए जाएं उनको याद कर लेना है। लबनुन दूध, फरीदतुन फर्द, बकरुन गाय, मखाफतुन खौफ, इताअतुन इताअत, नस्रुन मदद। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आगे कुछ उर्दू के अल्फाज दिए जा रहे हैं, उनको अरबी बनाकर लाना है घर से। मसलन अल्लाह का खौफ, अल्लाह का अज़ाब, हाथी का सर या किसी हाथी का सर, एक किताब का सबक, अल्लाह का रंग, अल्लाह की मदद। हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को पढ़ा और मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में ये पढ़ा कि मुज़ाफ़ के ऊपर ना तो अलिफ लाम तारीफ़ी आता है और ना तनवीन। मुज़ाफ़ इलैहि उसके ऊपर अलिफ लाम तारीफ़ी भी दाखिल हो जाता है और नहीं भी होता। इसकी मिसाल लो, मुअल्लिमु, यहां देखें आप अलिफ लाम तारीफ़ी है इसके ऊपर, तनवीन है क्या? तो ना तनवीन है और ना अलिफ लाम तारीफ़ी, तो इसलिए क्या हुआ, ये मुअल्लिमु ये क्या है, मुज़ाफ़ है, और मुज़ाफ़ इलैहि यहाँ मारिफा है अलिफ लाम तारीफ़ी होने की वजह से। तो मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसे का उस्ताद। अगर हम यूं कहते मुअल्लिमु मदरसती, क्या कहते, तो अब ये क्या हो जाता, नकीरा हो जाता, किसी मदरसे का उस्ताद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि तो हमें समझ आ गया। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये उर्दू के हमने जुमले लिखे हैं, पहले इन्हीं में गौर कर लेते हैं ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। हमने बताया था कि आपको कि मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान जो होती है वो का की कैसे होती है। मसलन यहाँ लिखा है मदरसे का उस्ताद, तो इसमें मुज़ाफ क्या है, उस्ताद, और मुज़ाफ इलैहि, लेकिन उर्दू में चूंकि उल्टा ही रहता है मामला। जैसे मुरक्कब तौसीफी में हुआ था कि जो है सिफत पहले आ रही थी और मौसूफ साहब बाद में, अच्छा आदमी, तो अच्छा सिफत ही ये पहले आ गई और आदमी साहब बाद में आ रहे हैं। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में तो बड़ा शानदार तरीका है। तो का से पता चला ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अब यहाँ आ जाते हैं मुअल्लिमुल मदरसती, तो मदरसे का उस्ताद, मदरसे का उस्ताद नेक है, तो ये यहां से यहां तक ये क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो पहले इसका तर्जमा करेंगे, क्या होगा, मुअल्लिमुल मदरसती, नेक है, क्या है, नेक है, तो सालिहुन खबर आ गई। तो मुअल्लिमुल मदरसती ये मुब्तदा हुआ और सालिहुन ये खबर हुई। यहां मैं एक बात और समझा दूं कि जिस तरह मुरक्कब तौसीफी कभी मुब्तदा बनकर आता था और कभी खबर, कभी ऐसा होता था कि दोनों मुरक्कब तौसीफी हैं, एक तो उनमें से क्या है, मुब्तदा की हैसियत रखता है जुमला मुरक्कब तौसीफी, और दूसरा खबर की। ठीक इसी तरह ये मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है कभी मुब्तदा बनता है कभी खबर बनता है। कभी ऐसा होता है कि यही मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा भी है और यही मुरक्कब इज़ाफ़ी आगे फिर खबर भी है। मदरसे का उस्ताद नेक है, मुअल्लिमुल मदरसती ये मुब्तदा है, सालिहुन ये खबर है। ज़ैद मदरसे का उस्ताद है, तो इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी कहाँ है पर ध्यान मत दो। अरबी में ये जो है ना, है और हैं, ये नहीं है, ये तो सिर्फ फारसी जबान में है। उर्दू में है, हैं, इंग्लिश में इज, अरबी में नहीं है, तो इसे है पर ध्यान मत दो। फिलहाल ये देखो मदरसे का उस्ताद और ज़ैद क्या है, मुब्तदा है।
ज़ैदुन, यहां देखो आप मुब्तदा है, मुअल्लिमुल मदरसती, मुअल्लिमुल मदरसती ये क्या है, खबर है। हमने बताया था कि मुरक्कब इजाफी कभी मुब्तदा बनकर भी आता है और कभी खबर बनकर भी आता है। मेहनती जैद मदरसे का उस्ताद है। अब इसमें दो मुरक्कब इस्तेमाल हुए हैं, मेहनती जैद और मदरसे का उस्ताद। मेहनती जैद क्या है, मुरक्कब तौसीफी है। क्या है, तो जब अरबी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मुरक्कब तौसीफी का ख्याल रखते हुए करेंगे। जैसे ज़ैदुनिल मुजतहिदु, ज़ैदुनिल मुजतहिदु, मेहनती जैद मदरसे का उस्ताद है, तो मुअल्लिमुल मदरसती, तो मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बनकर आया है, और मुअल्लिमुल मदरसती ये मुरक्कब इजाफी है और खबर बनकर आया है। मदरसे का उस्ताद खुश दिल आदमी है, तो मदरसे का उस्ताद ये यहां तक क्या है, मुरक्कब इजाफी है। का से पता चल रहा है ना, जहां भी का की के दिखाई देता है ना, बस समझ जाइए कि मुरक्कब इजाफी का कुछ ना कुछ रोल है यहाँ। मदरसे का उस्ताद, तर्जमा होगा मुअल्लिमुल मदरसती, खुश दिल आदमी है, खुश दिल आदमी मुरक्कब तौसीफी हुआ। तो रजुलुन मबसूतुन, रजुलुन मबसूतुन, लेकिन पढ़ेंगे कैसे इसको, रजुलुम मबसूतुन, किस कायदे के तहत, हाँ हाँ इदगाम बागुन्ना के कायदे के तहत इसको क्या पढ़ेंगे, रजुलुम मबसूतुन। तो बहरहाल मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बनकर आया है और रजुलुन मबसूतुन मुरक्कब तौसीफी है, नकीरा है, खबर बनकर आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए होंगे कि मुरक्कब इजाफी जो है कभी मुब्तदा बनकर आता है और कभी खबर बनकर आता है। ये कायदा तय है कि मुजाफ जो होगा, मुजाफ उसके ऊपर ना अलिफ लाम तारीफी और ना तनवीन। मुजाफ इलैहि उसके ऊपर अगर अलिफ लाम तारीफी है तो गोया वो मारिफा है, और अगर नहीं है तो उसको नकीरा समझेंगे। जैसे मुअल्लिमु मदरसतिन, किसी मदरसे का उस्ताद। अब यहां मैं आपको एक कायदा और सिखा देता हूं। ये तो सिंपल सा कायदा था कि एक इस्म क्या है, मुजाफ है, दूसरा मुजाफ इलैहि। कभी ऐसा भी होता है कि मुजाफ इलैहि दो दो भी होते हैं, या ऐसा भी होता है कि कोई एक इस्म होता है वो एक उसी टाइम में मुजाफ भी बन रहा होता है और मुजाफ इलैहि भी बन रहा होता है। इसकी मिसाल देता हूं मैं, मदरसे के उस्ताद के शागिर्द का घर। तो अब मुरक्कब इजाफी पर गौर फरमाएं आप कि ये सिंपल सा मुरक्कब है। तर्जमा होगा मुअल्लिमुल मदरसती, कोई मुश्किल नहीं। एक इस्म मुजाफ है, दूसरा मुजाफ इलैहि है। लेकिन आप दूसरे जुमले पर गौर फरमाइए, एक दो के का, यानी एक इस्म मुजाफ भी बन रहा है और मुजाफ इलैहि भी बन रहा है, एक ही वक्त में मुजाफ भी है और मुजाफ इलैहि भी है। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे मुरक्कब तौसीफी में आपने उल्टी तरफ से तर्जमा शुरू किया था, इसी तरह इसमें भी आप उल्टी तरफ से शुरू करें। मसलन इसमें लिखा है शागिर्द, क्या लिखा है, तो इसको मुजाफ बनाएं आप, तिलमीजु जी। याद रखें हमेशा कि ऐसा इस्म, ये सिंपल सा फार्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसको जहन में बिठा लेना। ऐसा इस्म जो मुजाफ भी बन रहा हो और मुजाफ इलैहि भी, उसे अलिफ लाम तारीफी मत दो। दूसरे नंबर पर उसे जर में ले आओ, क्या में ले आओ, जर में। जैसे यहां था मदरसे के उस्ताद का शागिर्द, तो शागिर्द का तर्जमा तो हो गया तिलमीदु। अब उस्ताद का मुअल्लिमी, क्या, तिलमीदु मुअल्लिमिल मदरसती,
تلمید معلم المدرستی، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ایسا اسم جو ایک ہی ٹائم میں مضاف بھی بن رہا ہو اور مضاف الیہ بھی، تو اسے الف لام تعریفی مت دو، اسے جر میں لے آؤ، کیا میں لے آؤ؟ ہاں یہ دیکھو، معلمی، تلمید معلم المدرستی، مدرسے کے ایک استاد کے شاگرد کا، لمبا مرکب ہے۔ اب اس کا ترجمہ اسی طرح سے کرو، الٹی سائیڈ سے اس کا ترجمہ شروع کرو، پہلے گھر کا کرو۔ گھر کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بیت لکھوں یا بیت لکھوں؟ بیت، چونکہ یہ مضاف ہے جی جی، بیت، شاباش، تلمیذی، معلمی، مدرسے، بیت تلمیذ معلم مدرستی۔ اب آگے چلتے ہیں، وزیر کے مکان کا دروازہ، وزیر کے مکان کا دروازہ، یہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن ہے۔ دروازے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بابو، جی بابو بیت الوزیری، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ ایک تو بالکل سادہ سا مرکب اضافی ہے جیسے مضاف اور مضاف الیہ، ایک اسم مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ، لیکن باقی کی مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہی وقت میں ایک اسم مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایسا اسم جو ایک ہی وقت میں مضاف بھی ہو مضاف الیہ بھی ہو، اس کو نہ تو الف لام تعریفی دو اور نہ تنوین، بلکہ اس سے زیر دو، جر دو اس کو، سمجھے؟ یہ میں سمپل سا فارمولا بتا رہا ہوں اصطلاحات سے ہٹ کر کے، تاکہ مائنڈ کے اندر پیٹرن سیٹ ہو جائے۔ الحمدللہ تمہیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائیں۔ تو ہم نے دو قاعدے سیکھے ہیں، پہلا تو سادہ سا مرکب ہے، مرکب اضافی، دوسرا ہے کہ ایسا اسم جو ایک ہی وقت میں مضاف ہے اسی وقت میں مضاف الیہ ہے۔ ماشاءاللہ، اب تھوڑی سی ترکیب کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مرکب اضافی کبھی مبتدا بن کر آتا ہے اور کبھی خبر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لکھے ہوتے ہیں، دونوں مرکب اضافی ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہے اور ایک خبر، جیسے مرکب توصیفی میں کہ دونوں مرکب توصیفی تھے مگر ایک مبتدا ہے دوسرا خبر۔ چلو ترکیب کرو، معلم المدرستی، معلم مضاف ہے، المدرستی کیا ہے؟ مضاف الیہ، تو کون سا مرکب بنا؟ مرکب اضافی بنا۔ تلمیذ معلم المدرستی، اس میں وہ اسم مجھے بتلاؤ دیکھ کر جو ایک ہی وقت میں مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ معلمی، شاباش، آپ نے بہت اچھا بتایا۔ اچھا یہاں دیکھ کر بتائیں، یہاں کتنے اسما ہیں جو ایک ہی وقت میں مضاف بھی ہیں مضاف الیہ بھی ہیں؟ تلمیذ اور معلم۔ چلیے، بابو بیت الوزیری، اس میں کون سا ہے؟ بیتی ہے، شاباش، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ دعا پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد اہلا۔